Hello and assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to solve the International Kangaroo Science Contest of the year 2016. Okay, this quiz is from the year 2016 and it is of the pre-collegiate level. So the 16th International Kangaroo Science Contest will be held on 21st of September 2023, and this is and you only have a few days to prepare, so make sure to make the best out of these days and prepare yourself for the quiz. On the screen you can see that the time allowed here is written 60 minutes, and just beneath the time guideline there is written all questions worth 4 points, that all questions will be of worth 4 points. Okay, now let's observe what we can see in this picture. This is the scene of a classroom. There are the students studying. They have their books open and this is their teacher. Okay, this is their teacher. There are some sunflowers in the pot, as you can see, and this is the blackboard, and just beside the blackboard is a chart, a season chart, and this is the winter season, and this is depicting that it's a winter chart. And as you can see here, it is written that this is the calendar, and on the calendar, which month is on the calendar, you can see it's April. So we can say that the month that the ongoing month is April, and these are all the dates written here along with their days. This, I think, is the chart that depicts spring season. Okay, now let's see what's written in the picture. The teacher is saying on April 20 we visit a farm, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम 20th अप्रैल को फार्म जाते हैं. We go by bus, and वो कह रहे हैं कि हम बस के अंदर बैठ के जाते हैं. तो ये था सारा जो हमने पढ़ लिया है. ठीक है, ये ऑब्जर्व किया इस पिक्चर में से. नाउ लेट्स गो टू MCQ नंबर 1 विच स्टेट्स ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक डू चिल्ड्रन विजिट द फार्म. Okay, so let's go and see on what day of the week do children visit the farm. Okay, टीचर ने डे नहीं बताया हमें, तो ये अब डे जो है इसका क्लू हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा. तो यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ ए ऑप्शन है मंडे, बी ऑप्शन है ट्यूसडे, सी ऑप्शन है वेडनेसडे, डी ऑप्शन है फ्राइडे, ई ऑप्शन है सैटरडे. तो आपने अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, और जहाँ पर हम डेट और डेज मालूम करने के लिए क्या चीज़ देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं. तो आप कैलेंडर के ऊपर देखोगे 20th ढूंढते हैं हम. सबसे पहले अप्रैल की 20th कहाँ लिखी है, तो 20th इज़ हेयर, देयर इट इज़ रिटन. और व्हाट इज़ द डे mentioned here, you can see it's written Wednesday. Okay, the 20th would be on Wednesday. So on what day of the week do children visit the farm? On Wednesday. So C is the correct option, Wednesday. Now our second MCQ is how many days are there in April? Okay, how many days are there in April? Okay, you can also count the days, but I would suggest that you just go to the picture and be quick, be intelligent, be smart, and just see how many days are written here. As you can see, the last ending date is 30, so it just gives us a clue that there are 30 days in April. You don't have to count the days. So the A option is 7, B option is 28, C option is 29, and D option is 30, and E option is 31. So the correct option is D, 30. Now let's move on to MCQ number 3. In what season do children visit the farm? In what season do children visit the farm? A is winter, B is spring, C is summer, D is autumn, and E is April. So among these options you have to first cut out April, because April is not the name of a season. Okay, winter, spring, summer, and autumn are the names of the season. This cannot be considered as an option. Okay, you're not going to choose April as the correct choice. Okay, so let's go and see what season will they visit the farm. Okay, the teacher said that they will be going on 20th of April. So
if you all know the months of the seasons, then it will be easier for you to give answer of this question. Okay, let me tell you. First, there is winter. Okay, the months of winter are December, January and February. These are the months of winter. Then comes what? Yes, then comes spring, and the months of spring are March, April and May. What are the months of spring? March, April and May. So we can say that the correct option is B, spring. The correct option is B, spring. But let me tell you more. The months of we were on spring, right? And the months of summer are June, July and August. And then the months that are left would be of autumn, which are September, October and November. These would be of what? Autumn. Okay, now let's move on to MCQ number 4. They are asking what are the months of spring. We have just discussed the months of spring. Those were March, April and May. So you can just go to the right option. B is the right option, and which is March, April and May. So as I said, this is September, October and November is of autumn. What? Autumn, right? And March, May, June, these are not even in the March, May and June are not in the correct order. January, February and March. December, January, February is of winter, and then the March comes in the spring season. Okay, so now let's move on to MCQ number 5. What season is illustrated in the picture next to the blackboard? तो वो पूछ रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड के साथ जो पिक्चर बनी है उसमें कौन सा सीज़न दिखाया गया है. ए इज़ अप्रैल. एज आई सेड, इट्स नॉट अ सीज़न. यू हैव टू कट दिस ऑप्शन आउट. ओके, you cannot even consider this option because it's not, April is not the name of a season, it's the name of a month. Okay, the B option is spring, C option is summer, D option is autumn and E option is winter. So let's go to the picture and see which season is depicted in the picture just beside the blackboard. As you can see, this is the blackboard and right beside the blackboard is this picture. And which season is shown in this picture? Yes, it's winter. So the correct option would be winter. E, winter. E, winter is the correct option. So now we are on the next page. As you can see, the children and the students and the teacher are in the bus. As they said, they were going to the farm, so they are going to the farm on the bus. These are some cherry blossom trees. These are some migratory birds that goes by the name storks. These are the migratory birds. There is an aeroplane and we can also see a rainbow. Okay, so let's see what the teacher is saying. Children, look at the sky. The teacher is saying, बच्चों आसमान की तरफ देखो. And one of the students, the blonde one, is saying, a flock of storks is traveling back from the warm countries. Okay, उसने क्या observe किया? इन birds को observe किया. These birds are storks. वो कह रहे हैं कि स्टॉर्क्स का एक पूरा झुंड कहाँ से आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वार्म कंट्री से वापस आ रहा है, गर्म कंट्री से वापस आ रहा है. ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं. जब इनके क्या कहते हैं, टेम्परेचर जो होता है ना किसी भी जगह का, जब इनकी मुताबिक होता है तो ये उस जगह पर चले जाते हैं. फिर उसके बाद जब वहाँ का टेम्परेचर गिरना शुरू होता है तो वो दोबारा दूसरी जगह चले जाते हैं. ये इसी तरह ये माइग्रेशन करते रहते हैं. सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज द माइग्रेटरी बर्ड्स. So now let's go to MCQ number 6, which is, which of the following is a migratory bird? They are asking कि migratory bird कौन सा होता है? The stork, the rooster, the turkey, the hen, the sparrow. Okay, तो rooster migratory bird नहीं होता. मुर्गा जहाँ आप रखते हो, चाहे वहाँ सर्दी हो, गर्मी हो, बाहर हो, ख़ज़ां हो, वो वहीं पे ही रहते हैं.
ठीक है, वो उड़ के किसी और मुल्क नहीं चले जाते या किसी और जगह नहीं चले जाते। द टर्की भी माइग्रेटरी बर्ड नहीं है, हैन मुर्गी भी नहीं माइग्रेटरी बर्ड, स्पैरो भी नहीं है माइग्रेटरी बर्ड। स्पैरो जहाँ होती है वहाँ ही रहती है, ठीक है, वो माइग्रेशन करके नहीं जाती कहीं और। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, द स्टॉर्क। और यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं कि स्टॉर्क्स जो हैं, यहाँ पर ये बर्ड जो है ये स्टॉर्क है और ये हमें नज़र भी आ रहे हैं, और ये एक लड़की ने कहा भी है कि वो माइग्रेशन करके आ रहे हैं वार्म कंट्री से, तो ये ही क्लू है आपका। तो नाउ लेट्स गो टू MCQ नंबर 7 विच इज़ हाउ मैनी स्टॉक्स आर देयर इन द पिक्चर। सो लेट्स गो एंड काउंट द स्टॉक्स. How many stalks are there in the picture? This is so I'm sorry. So now let's just see what we were doing. Yeah, we were counting the storks. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Let's count again. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. There are 7 storks and this one is an aeroplane. This is not a stork. Okay, there are 7 storks. Okay, so we have A option 6, B option 7, C option 8, D option 9 and E option 10. So the correct option is B, 7. Now let's go to MCQ number 8. What natural phenomena does the teacher show? So they are asking कि टीचर ने कौन सा कुदरती जो फिनोमेना है, कुदरती अमल है, वो दिखाया है बच्चों को। रेन, क्या रेन हो रही थी? स्नो, क्या बर्फ़बारी हो रही थी? लाइटनिंग, या बिजली कड़क रही थी? रेनबो, या रेनबो नज़र आ रहा था, या थंडर, या फिर कोई वो क्या कह सकते हैं, थंडर आ रहा था, ठीक है, तूफ़ान आ रहा था। तो हमने देखा तो है कि रेनबो दिखाया टीचर ने, ठीक है। टीचर ने कहा लुक एट द स्काई, देयर इज़ अ रेनबो इन द स्काई, ठीक है। शी मस्ट बी सेइंग कि रेनबो को देखो। तो हमने क्या करना है, वी वुड गो टू MCQ नंबर 8 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ डी, रेनबो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू MCQ नंबर 9. It says look at the picture, what can pollute the atmosphere. अच्छा, वो कह रहे हैं पिक्चर को देखें और बताएं कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट यानी कि गंदा कौन सी चीज़ कर सकती है। अब एटमॉस्फेयर पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन वो सारे गंदे मादे होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं और जिनकी वजह से जो हवा का और हमारी ज़मीन का जो नेचुरल जो कॉम्पोजिशन वगैरह होती है ना, वो ख़राब होती है, ठीक है। जैसे अब ये सर्दियों में पाकिस्तान में स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वो स्मोक जो होती है ना, वो इसी क्या कहते हैं, गंदे धुएं और पोल्यूशन की वजह से ही होती है कि वो पोल्यूशन फॉग के साथ मिलता है और वो एक अलग ही चीज़ बना देता है जिसको हम कहते हैं स्मोक, और उसकी वजह से बहुत नुकसान भी होता है, लोगों को इरिटेशन होती है आँखों में और जलन वगैरह होती है, कुछ इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। तो ये जो है ये पोल्यूशन की वजह से होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो पोल्यूट करती है एटमॉस्फेयर को। द स्टोर्क्स, क्या बर्ड्स पोल्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर को? नहीं, बर्ड्स तो नहीं पोल्यूट करते। वो कौन सा धुआं छोड़ें या फिर जहरीली जो गैसें हैं वो फैक्ट्रियों में से निकालें, तो स्टोर्क्स नहीं है आंसर। बी इज़ द बस एंड द प्लेन. So yes, the correct option would be the bus and the plane. As you can see, this is the bus in which the teacher and the students are sitting, and this is the plane. ठीक है, प्लेन भी है, उसमें के इंजन में से धुआं वगैरह निकलता है। जो बस है वो भी पेट्रोल पे चलती है, तो पेट्रोल जब बर्न होता है चलने के लिए तो वो धुआं वगैरह छोड़ता है और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, द बस एंड द प्लेन. सी ऑप्शन भी देख रहे हैं, द ट्रीज़ इन ब्लूम. क्या जो चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ हैं वो कुछ कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को? नहीं, ट्रीज़ बिल्कुल पोल्यूट नहीं करते एटमॉस्फेयर को, ट्रीज़ एटमॉस्फेयर को साफ़ करते हैं, ठीक है। तो ये पोल्यूटेंट नहीं है. द ट्रक्स भी पोल्यूट करते हैं, बट वी कैन नॉट सी एनी ट्रक इन दिस पिक्चर, ठीक है। पिक्चर में हमारे पास ट्रक नहीं दिया गया.
फिर उसके बाद ई ऑप्शन है द बस एंड द कार। तो बस तो है पिक्चर में बट कार कोई नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी बी ही होगी, द बस एंड द प्लेन। both these things are in the picture. We can see the bus and the plane in the picture. Now let's go to the next page. So the students and the teacher are on the farm, ठीक है। फार्म पे आ गए हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स। ये अब फार्म पे हमें क्या दिख रहा है, ये फार्म हाउस सा है, ये ही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो टीचर हैं वो इन अंकल से बात कर रही हैं, हमें स्टूडेंट्स बात करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ काउज नज़र आ रही हैं, हॉर्स है, डोंकी है, गॉट है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर ग्रीन हाउस भी है, हमें क्या दिख रहा है, ग्रीन हाउस भी दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके अलावा हमें यहाँ कैट भी दिख रही है, ठीक है। तो हमें ये सारा कुछ दिख रहा है, तो हम पढ़ लेते हैं। ओह देयर इज़ इवन अ माउस हेयर, ठीक है, यहाँ हमें माउस भी दिख रहा है। तो आज हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मैं ये हैं लाइक द टीचर इज सेइंग मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू कह रहे हैं वेलकम। तो टीचर कह रही हैं मिस्टर मैथ्यू कुड यू शो अस द फार्म, ठीक है। वो पूछ रही हैं कि आप हमें अपना फार्म दिखा सकते हैं, ठीक है। वी रियली वांट टू हेल्प यू। सो ये वाला स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। चलो लेट्स सी व्हाट द 10th क्वेश्चन इज़ व्हाट डज मिस्टर मैथ्यू वेयर। वो पूछे मिस्टर मैथ्यू ने क्या पहना हुआ है। ओवरऑल्स, क्या मिस्टर मैथ्यू ने ओवरऑल्स पहने हैं? नो। यूनिफॉर्म, क्या इधर कोई यूनिफॉर्म आपको दिख रहा है? नहीं, ये यूनिफॉर्म ऐसा तो नहीं होता है। अ फॉक ड्रेस, अ फॉक कॉस्ट्यूम, येस इट इज़ अ फॉक कॉस्ट्यूम, ठीक है। जो क्या कहते हैं, डिफरेंट तहजीब होती है ना, उनके अपने अपने कुछ लिबास होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं। जो मिस्टर मैथ्यू ने भी एक किस्म का फोक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, अ फोक कॉस्ट्यूम। अ ड्रेस, मिस्टर मैथ्यू इज़ वेयरिंग अ ड्रेस एज यू कैन सी। तो ड्रेस इस तरह का तो नहीं होता, वो तो फीमेल्स के लिए ड्रेस कहा जाता है ना। अ स्कर्ट, मिस्टर मैथ्यू इज़ वेयरिंग अ स्कर्ट एज वेल। स्कर्ट नहीं है यहाँ पर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, अ फोक कॉस्ट्यूम। Now let's move on to MCQ number 11. How many animals are there in the picture? वो पूछ रहे हैं कि पिक्चर में कितने एनिमल्स हैं। हमें ये एनिमल्स काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। 1 2, लेट्स राइट 1 2 3 4 5 6 7 and this 8. This mouse is 8 and we have a cat here which is 9. So there are how many animals? There are 9 animals in the picture. We can see how many animals? We can see 9 animals in the picture. So correct option is D, 9. Now let's move on to MCQ number 12. What domestic animal in the picture lives with people in their houses? वो पूछ रहे हैं कौन सा डोमेस्टिक एनिमल जो है वो पिक्चर में जो आपको नज़र आ रहा है वो लोगों के घरों में रहता है। तो डोमेस्टिक एनिमल क्या होता है? डोमेस्टिक एनिमल वो होता है जो आप अपने घर के अंदर रखते हैं और उनसे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सो hen is a domestic animal. Even cows are considered domestic animals and goats as well, because they give us meat, milk, and hens give us hens give us eggs. So the domestic animal that lives in the people's house, ठीक है, वो कौन सा डोमेस्टिक एनिमल होता है जो लोग अपने घरों के अंदर रख सकते हैं। तो हॉर्स क्या घर के अंदर आ सकता है फिट? नहीं, हॉर्स के लिए हॉर्स स्टेबल होना ज़रूरी है। डोंकी भी नहीं होता, और काव को भी आप अंदर घर के अंदर नहीं रखते, काव को भी घर के बाहर ही छोटी जगह देनी पड़ती है, वहाँ पर वो रहती है। गोट को भी आप अलहदा रखते हो, और रैट्स को लोग एज अ पेट नहीं रखते, और कुछ लोग को रखते हैं बट रैट्स एज अ पेट नहीं रखे जाते। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द कैट। ओके, कैट वो डोमेस्टिक एनिमल है जिसको लोग अपने घरों में रखते हैं, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, द कैट। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, द कैट। डॉग,
बी एक डोमेस्टिक एनिमल है जिसको लोग अपने घर के अंदर रखते हैं, बट वो हमें पिक्चर में कोई एक डॉग नहीं नज़र आया, ठीक है। So now let's move on to the next page. Okay, you can see के the students and the teacher are in where? Are in the greenhouse farm, ठीक है। ये ग्रीन हाउस के अंदर चले गए हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डिफरेंट ये फ्रूट्स हैं, ये फ्लावर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर भी फ्लावर्स दिख रहे हैं हमें। यहाँ पर एक ये टूल्स हैं जिसकी मदद से क्या कहते हैं पौधों को लगाया जाता है, ठीक है, उनको पानी दिया जाता है। तो ये सारा कुछ है। और ये एक लेडी है जो बच्चों को दिखा रहे हैं कि ये क्या है और कुछ बता रही है। ओके, द टेम्परेचर इनसाइड ग्रीन हाउस इज़ हायर देन आउटसाइड। अच्छा, तो बच्चा कह रहा है कि जो ग्रीन हाउस के अंदर दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, वो बाहर से ज़्यादा है। दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, वो बाहर से क्या है, ज़्यादा है। तो वो लेडी जवाब दे रहे हैं वेजिटेबल्स नीड वाटर एंड हीटिंग। तो वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए होता है और हरारत चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है। ज़्यादा गर्मी होगी तो वो ज़्यादा अच्छी ग्रो करेंगे और जल्दी ग्रो करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू 13 MCQ नंबर 13। पीपल ग्रो ब्लैंक इन ग्रीन हाउसेस। पीपल लोग क्या ग्रो करते हैं ग्रीन हाउसेस में? ए ऑप्शन इज़ फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्लावर्स होती हैं और वेजिटेबल्स क्या वो ये ग्रो करते हैं। बी ऑप्शन इज़ डोमेस्टिक एनिमल्स। क्या डोमेस्टिक एनिमल्स वो ग्रो करते हैं? तो या वाइल्ड एनिमल्स ग्रो करते हैं ग्रीन हाउस में, ओनली वेजिटेबल्स या सिर्फ वेजिटेबल्स करते हैं, या ओनली फ्रूट ट्रीज़ या सिर्फ फलों को करते हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहली बात है ग्रीन हाउस में ना डोमेस्टिक एनिमल्स रखे जाते हैं ना वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं। ग्रीन हाउस एनिमल्स के लिए नहीं होता, ठीक है। ओनली वेजिटेबल्स वुड नॉट बी द राइट आंसर, क्योंकि हमने ऊपर देखा, हमें ऊपर वेजिटेबल्स भी दिख रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये टोमेटो है, ये कैबेज है, ये हमारे पास कैरेट है, ठीक है। हमें डिफरेंट वेजिटेबल्स दिख रहे हैं और हमारे पास ये देखें, ये सारे क्या हैं, ये फ्लावर्स भी हैं हमारे पास। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हमने आंसर लगाया है। Now let's move on to MCQ number 14, which is plants are grown in greenhouse because plants को green house में क्यों क्या कहते हैं ग्रो किया जाता है, वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स को ग्रीन हाउस में इसलिए ग्रो किया जाता है क्योंकि, ठीक है। ए ऑप्शन इज़ इट्स कोल्डर देन आउटसाइड, क्योंकि अंदर का दर्जा हरारत क्या होता है, क्या कोल्डर होता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टूडेंट कह रहा है द टेम्परेचर इनसाइड अ ग्रीन हाउस इज़ हायर देन आउटसाइड। तो दिस ऑप्शन इज़ इंटायरली रॉन्ग, ठीक है, इसको रॉन्ग कर दें। दे डोंट नीड लाइट, क्या इनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है? नो, दे डू नीड लाइट। हीटिंग है, ठीक है। हीट कहाँ से आती है हमारे पास? सूरज से आती है, तो सूरज लाइट भी देता है, ठीक है। सो दैट्स समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट, दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि हमारा जो सन है वो सोर्स ऑफ लाइट है, एनर्जी है, ठीक है, और हीट वगैरह ये सारा सन हमें देता है। तो अगर हीटिंग चाहिए पौधे को तो दैट मीन्स कि उनको लाइट भी चाहिए। दे डोंट नीड टू बी लुक्ड आफ्टर, क्या ग्रीन हाउस में उनकी देखभाल नहीं की जाती? तो दैट्स रॉन्ग। ये देखिए, ये लेडी जो है यहाँ पर, ये इनकी देखभाल करती हैं इन पौधों की, ठीक है, उनको अच्छे से देखभाल करती हैं, पानी देती हैं, फिर उसके बाद जड़ें काटती हैं, जो एक्स्ट्रा कुछ गलत उनका साथ वीड लग जाती है अगर गलती से, तो वो भी उतारती हैं। तो ये लेडी उनकी टेक केयर करती हैं। दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बैड एनवायरनमेंट। Yes, D option is right. They must be protected from bad weather. अगर कभी ऐसा हो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टॉर्म आ गया है, ठीक है, या बहुत बुरी आंधी चल रही है, तो उससे बचाने के लिए इनको ग्रीन हाउस के अंदर उगाया जाता है। क्योंकि अगर तूफ़ान आए तो पौधे ख़राब हो जाती हैं, वेजिटेबल्स ख़राब हो जाती हैं। अगर तूफ़ान यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है तो कुछ उखड़ भी जाती हैं, कुछ के ऊपर से जो सीड्स होते हैं
वो पॉलिनेट करके इधर उधर चले जाते हैं हवा के साथ। तो इतनी तेज़ हवा होती है कि वो ख़राब कर देता है पौधे को। और ये ऑप्शन है दे डोंट लाइक रेन, तो किसको रेन पसंद नहीं होती है, ठीक है। रेन पसंद होती है फ्लावर्स को भी, और पानी उनको चाहिए होता है, ठीक है, ग्रो करने के लिए, बट एक मुख्तसर मिकदार में, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो उससे भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। सो नाउ लेट्स गो टू MCQ नंबर 15. It says there is a blank in the picture. What is there in the picture? A option is watering can, B option is a helmet, C option is hammer, D option is fork, E option is screwdriver. So let's go and see. यहाँ पर आपको कोई हेलमेट नज़र आ रहा है? कहीं भी कोई हेलमेट है या कोई स्क्रू ड्राइवर है या हैमर है? हमें यहाँ पर कोई हैमर दिख रहा है? फोर्क है? नो, यहाँ फोर्क भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट देयर इज़ अ वाटर कैन, लेकिन हमें क्या दिख रहा है? वाटर कैन एक दिख रहा है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ वाटर कैन, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, वाटर कैन। देयर इज़ अ वाटर कैन इन द पिक्चर, ओके। So now MCQ number 16 is look at the picture. What vegetables are grown in the greenhouse? वो कह रहे हैं पिक्चर को देखें और बताएं कि ग्रीन हाउस में कौन सी सब्जियां, वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ट्यूलिप्स एंड कैरेट्स। ट्यूलिप्स क्या वेजिटेबल हैं? नहीं, ट्यूलिप्स तो फ्लावर होते हैं। सो ये इंस्टेंटली रॉन्ग हो गई, ठीक है। इसको हम कैरेट्स एंड टमेटोज़ ये देख लेते हैं हम जाके, क्या कैरेट्स हैं? These are the carrots, these are the what? Carrots, and these are the tomatoes. So yes, we can see carrots and tomatoes, ठीक है। कैरेट्स एंड टमाटोज़ हमें दिख रही हैं। ट्यूलिप्स एंड टमाटोज़ मैंने बताया कि ट्यूलिप्स जो है वो फ्लावर होता है, वो एक फल नहीं है और वेजिटेबल नहीं है, तो ये रॉन्ग होगी। एग प्लांट्स एंड कैरेट्स, एग प्लांट तो हमें कहीं भी नहीं देखा, सो ये भी गलत है। एग प्लांट्स एंड टमेटोज़ तो हैं बट एग प्लांट्स नहीं हैं। सो बी ऑप्शन विच इज़ कैरेट्स एंड टमेटोज़ इट्स द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन कैरेट्स एंड टमेटोज़। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, ओके। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। एक और हमारे पास सीन आ गया फार्म का ही। यहाँ पर ये हमारे पास शीप्स हैं, यहाँ पर हमें दिख रहे हैं डक्स दिख रहे हैं, एक छोटा सा पॉन्ड भी है, हमें हेन्स भी दिख रहे हैं, यहाँ एग्स हैं, ठीक है। हेन्स जहाँ एग्स देती हैं ये उनके लिए अलग से जगह बनाई हुई है। ये लेडी हैं जो फार्म की टेक केयर करती हैं, वो बच्चों से बात कर रही हैं, टीचर से बात कर रही हैं, और यहाँ पर हमें स्टोर्क भी दिख रहा है, ओके। नाउ वी कैन सी the lady is saying animals need care, ठीक है। एनिमल्स को क्या चाहिए होते हैं? केयर, ठीक है। और दिस स्टूडेंट इज सेइंग एंड दे नीड फूड एंड वाटर टू, और उनको खाना और पानी भी चाहिए होता है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं। अब ये टीचर जो है, टीचर कह रही हैं चिल्ड्रन हरी अप, बच्चों जल्दी करो, रेन इज़ कमिंग, रेन आने वाली है, ठीक है, बारिश होने वाली है। अब इनको कैसे पता लगा बारिश होने वाली है? यहाँ से काले काले बादल जब आ रहे हैं तो ये काले बादल जो हैं ये बारिश ही लेके आते हैं। तो ये बादल क्योंकि इस तरफ को आ रहे हैं, इसलिए वो टीचर कह रही हैं कि बारिश होने वाली है। सो नाउ लेट्स गो टू MCQ नंबर 17 विच इज़ हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर इन द पिक्चर, ओके। वी वुड हैव टू काउंट ऑल द बर्ड्स इन द पिक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव द स्टोक, ठीक है, ये 1 है। इसके बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए, रूस्टर भी बर्ड है, हेन भी बर्ड है, एंड डक भी बर्ड है, ठीक है। इवन ये डकलिंग्स जो हैं छोटे, ये भी बर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 and we have 9 10 11 and the last one would be 12. So how many birds are there in the picture? There are 12 birds in the picture. How many birds are there in the picture? There are 12 birds.
Let's go where and find the option 12. A is 7, B is 11 and C is 12, which is the right option. C 12. Okay, so now let's go to MCQ number 18, which is a raindrop. It says a raindrop is blank water. ओके, रेन ड्रॉप कौन सा वाटर होता है, स्टेट बतानी है रेन ड्रॉप की, ठीक है। जो बारिश के कतरे होते हैं, ठीक है, वो किस स्टेट में होते हैं, क्या वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, सॉलिड तो नहीं होते, ठीक है, वो आके नीचे क्या कहते हैं पत्थरों की तरह तो नहीं बरसते ना, तो दीज आर अल्हम्दुलिल्लाह, तो दोज आर नॉट सॉलिड। ओके, सॉलिड तो नहीं है, तो ये ऑप्शन हम कट कर देते हैं, सी ऑप्शन विच इज़ सॉलिड। फ्रोज़न, क्या रेन ड्रॉप फ्रोज़न होते हैं, नहीं, रेन ड्रॉप्स फ्रोज़न भी नहीं होते। इसके बाद आइस, क्या आइस होती है, ठीक है, रेन ड्रॉप इज़ आइस वाटर, नहीं, आइस वाटर भी नहीं होता। स्टीम होता है क्या, क्या वो एकदम से क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं हवा की तरह की क्या आ रही होती है, ये रेन हवा की तरह की थोड़ी ना होती, स्टीम तो हवा होती है, जब आप पानी बॉईल करते हैं तो वो स्टीम निकलती है, तो वो बखारात होते हैं, वो तो हवा होती है, ठीक है, दोज आर नॉट, दैट्स नॉट हाउ रेन इज़ लाइक। तो रेन जो होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है, रेन ड्रॉप इज़ लिक्विड वाटर, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट की होती है, पानी की तरह होती है। फिर वी हैव द MCQ नंबर 19, विच इज़ व्हेन डू एनिमल्स नीड फूड। अच्छा, एनिमल्स को खाना कब चाहिए होता है, ए ऑप्शन इज़ इन विंटर, सर्दियों में चाहिए होता है, बी ऑप्शन इज़ इन स्प्रिंग, क्या उनको बाहर में चाहिए होता है, ठीक है, सी ऑप्शन इज़ एवरी डे, डी ऑप्शन इज़ एवरी वीक, हर हफ्ते चाहिए होता है, ई ऑप्शन इज़ एट नाइट, सिर्फ रात को चाहिए होता है। तो आपने अगर एनिमल्स को ऑब्ज़र्व किया हो, या आपने कभी हेंस रखी हों, या कभी कोई बकरा भी रखा हो, या गाय वगैरह कुछ भी रखा हो, कोई भी किस्म का एनिमल रखा हो, तो आपने ये बात नोटिस की है कि एनिमल्स को एवरी डे खाना देते हैं, ठीक है, उनको हर दिन खाने की ज़रूरत होती है, ये नहीं कि सर्दियों में खाना देना है सिर्फ, बाकी बेचारे भूखे हो जाएंगे, ठीक है, भूख जब कुछ खाएंगे नहीं तो बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। स्प्रिंग में भी नहीं दे सकते क्योंकि तो इतने लंबे लंबे सीज़न होते हैं, क्या पूरा सीज़न वो नहीं खाएंगे। एवरी वीक, क्या हर हफ्ते बाद खाना खाते हैं, नहीं। तो जिस तरह हम रोज़ खाना खाते हैं, इसी तरह एनिमल्स भी रोज़ खाना खाते हैं, ठीक है, रात को भी नहीं सिर्फ देना होता, ओनली एवरी डे, और एवरी डे हम अगर तीन दफ़ा खाते हैं तो एनिमल्स भी एटलीस्ट 2-3 टाइम्स ज़रूर खाते हैं। सो now let's move on to MCQ number 20, which is how does the teacher know that rain is coming। वो पूछने के टीचर को कैसे पता चला है कि रेन आने वाली है। ए ऑप्शन इज़ देयर इज़ अ डार्क क्लाउड इन द स्काई, बी ऑप्शन इज़ अ स्टॉर्क इज़ फ्लाइंग, सी ऑप्शन इज़ देयर आर डक्स इन द पॉन्ड, द डी ऑप्शन इज़ द शीप्स आर इन द फोल्ड, ए ऑप्शन इज़ अ चाइल्ड सेड सो। अच्छा, तो हम चले जाते हैं, तो टीचर को कहाँ से पता लगा था कि बारिश आने वाली है, स्टॉर्क ने बताया था, नहीं, ये तो बोल ही नहीं सकता, इसने क्या बताना कि बारिश आ रही है। क्या शीप्स ने कुछ कहा था कि बारिश आने वाली है, या जो पॉन्ड में डक्स थी इन्होंने कुछ कहा था, या इनको देख के पता लग सकता है कि बारिश आने वाली है, या किसी बच्चे ने कहा हो कि टीचर बारिश आने वाली है, यहाँ चलते हैं, नहीं, टीचर ने खुद देखा कि ये जो थंडरस क्लाउड्स थे, ब्लैक क्लाउड्स थे, डार्क क्लाउड्स थे, ये आगे की तरफ आ रहे हैं, तो ये रेनी क्लाउड्स हैं, ये रेन करेंगे, ठीक है। टीचर ने खुद अपनी साइट यूज़ की, ठीक है, और अपनी सेंस और अंडरस्टैंडिंग से ये रिज़ल्ट निकाला, ये नतीजा अख़ज़ किया कि रेन होने वाली है। So the correct option is A, there is a dark cloud in the sky, ठीक है, जिससे पता लगा है क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है। Let's move on to the next page, which is the last page, okay। So okay, this is Marioka, this is the name of a student, Kostel, Vlad, Anka and Doru have each brought a postcard, ठीक है, सारे बच्चे जो हैं पोस्ट कार्ड्स लेकर आए हैं, ठीक है। अब ये देखें, मरियुका जो थी वो एक फ्लावर का लेकर आई है, व्लाड जो है वो एक बीच का सीन का पोस्ट कार्ड लेकर आया है, कोस्टल जो है वो फॉरेस्ट का लेकर आया है,
उसके बाद एन का जो है वो हमारे पास विंटर सीजन का पोस्ट कार्ड लेकर आई हैं, और डोरू भी हमारे पास किसका लेकर आई है, ये वॉल्केनो है, दिस इज़ अ वॉल्केनो, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है MCQ नंबर 21 में, हु ब्रॉट द विंटर सीन पोस्ट कार्ड, विंटर सीन पोस्ट कार्ड कौन लाया था, तो वी कैन सी दिस इज़ द विंटर सीन एंड here is the name Anka. Anka brought the winter scene postcard. So A option is Doru, B option is Anka, which is the correct option, B option Anka. ठीक है, Anka brought the winter scene postcard. Okay, now let's move on to MCQ number 22. Coastal and Vlad exchanged their postcards. अच्छा, अब हुआ क्या, कोस्टल और व्लाड ने अपने पोस्ट कार्ड एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। कोस्टल का था ये फॉरेस्ट, ठीक है, कोस्टल का क्या था, फॉरेस्ट, और व्लाड का था बीच, और ये व्लाड है, ठीक है, इसका बीच था, देखो ये व्लाड लिखा है, उसने ये लाया था बीच का पोस्ट कार्ड। तो इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने एक्सचेंज कर लिया, यानी कि उन्होंने कहा कि व्लाड ने कहा तुम मुझे फॉरेस्ट वाला दे दो, और कोस्टल ने कहा तुम मुझे बीच वाला दे दो, ठीक है, यानी कि इन्होंने एक दूसरे का एक्सचेंज कर दिया। सो नाउ कोस्टल हैज़ अ पोस्ट कार्ड, ठीक है। तो वो पूछा कि अब कोस्टल के पास कौन सा पोस्ट कार्ड है, तो देखो पहले कोस्टल के पास फॉरेस्ट का था, ठीक है, क्योंकि उसने ये फॉरेस्ट वाला व्लाड को दे दिया और व्लाड ने अपना बीच वाला कोस्टल को दे दिया। सो नाउ कोस्टल हैज़ विच कार्ड, बीच पोस्ट कार्ड। सो नाउ कोस्टल हैज़ अ बीच पोस्ट कार्ड, ठीक है। सो सी ऑप्शन अ बीच इज़ राइट, ओके। विंटर सीन हमें एनका का हमें पता है, वॉल्केनो डोरू लाया था, ठीक है, विंटर सीन वॉज एनका, ओके, एनका, वॉल्केनो डोरू, वॉल्केनो वॉज डोरू, ठीक है, और फॉरेस्ट हमें पता है कि कोस्टल के पास अब बीच है, ठीक है, ऑल्दो कोस्टल फॉरेस्ट लाया था, लेकिन व्लाड और कोस्टल ने क्योंकि एक्सचेंज कर लिए तो कोस्टल के पास अब बीच आ गया, तो व्लाड के पास अब फॉरेस्ट होगा। स्नो ड्रॉप वाला कोई हमारे पास पोस्ट कार्ड नहीं है, इस यही हमारे पास पोस्ट कार्ड थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू MCQ नंबर 23 विच इज़ हु ब्रॉट द पोस्ट कार्ड विद द स्प्रिंग फ्लावर। वो कह रहे हैं कि स्प्रिंग फ्लावर वाला पोस्ट कार्ड कौन लाया था, ये आपके पास फ्लावर नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये लाई थी मरियुका, ठीक है, मरियुका बॉट द स्प्रिंग फ्लावर। नाउ लेट्स गो टू द ऑप्शंस, ऑप्शन इज एनका, बी ऑप्शन इज कोस्टल, सी ऑप्शन इज मरियुका, which is the correct option, B option is Vlad and E option is Doru. Correct option is C, Mariuka. The MCQ number 24 is who brought the postcard with the volcano. तो volcano वाला postcard कौन लाया था, A option is Doru, B option is Anka, C option is Vlad, D option is Coastal, and E option is we have Mariuka. Okay, so we have just marked the MCQ with Anka, in which it was written that the winter scene was brought by who, Anka. Vlad brought the beach postcard, Coastal brought the forest postcard, and so the best option would be Doru. Doru was the one who brought what, the volcano postcard. We can also see it up there in the pictures. You can see the name Doru is written on the volcano postcard. So this was all for today's international kangaroo science quiz. I hope you guys will utilize the time and the days you have to prepare well for the quiz competition. And this was for pre-collier level. I hope you like it. If you like it, then subscribe to my channel and make sure to share this video with your friends so they can also learn this valuable information and knowledge. You know, sharing is caring, whether it's knowledge or other things. So make sure to share this with your friends. I hope you liked it, and thank you so much for watching.